Thank you so much for joining, everyone. Vijay sir is here with us, and we'll just start this amazing show. First of all, thank you so much, Vijay sir, for joining, for taking out time for our audience, for our listeners. Uh, Really excited to learn from you. आज का टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सजेस्टेड बाय सर हिमसेल्फ. हम लोग की बात चल रही थी, मैंने सर से पूछा कि क्या टॉपिक हो सकता है. पहले हम तो सर ने सजेस्ट किया कि इन्वेस्टिंग बियॉन्ड मैथ्स, और द अदर ऑप्शनल टॉपिक वाज इन्वेस्टिंग इज इट मैथ्स और साइकोलॉजी. Sir, before I ask my questions, I would love it if you can take the mic and thoda sa if you can give us a run up on this, and then I'll start asking our questions for audience. Sir. So I'll just give a background of myself. I'm a rank holder CA. I have worked with almost 30 years in the investment business. I was part of Birla Mutual Fund in 93, 94. Then I was also part of a startup team at HDFC Mutual Fund. Then I was the CEO of two multinational companies in India, Deutsche Mutual Fund and also PGIM. I got Prudential of USA in India. Uh, uh, and in my 30 years of experience, I've seen that uh, if you look at the way Indian invest, we have 60 lakh crore of annual investment. 50% of that goes into real estate, 15% goes into gold, and 15% goes into bank FDs. 6% goes into various insurance product, and around 6% goes into PPF and contractual government saving, and only 4.8% comes into equities. And we have all kind of knowledge being shared on equities. So whether somebody want a view on geopolitical risk or on the oil or interest rate or macro, whatever you talk, you have so much gyan floating around, but only 4.8% of national wealth get invested in an investment product which has delivered exceptionally good return. So much so that if you look at data for last 5, 10, 15, 20, 25, 30 years, I do not think there's any country except USA which come close to delivering the investment performance which Indian market has delivered. So numbers are in our favor, but investors are not coming in. So I was always wonder, and perhaps we try to understand how it can be decoded. Right. Perfect, sir. Sir, matlab, my primary question that I'm looking forward to understanding this from this space is ki, what should an average retail investor, I'm not talking just about stock markets, like just equity, I'm not just talking that broadly, what should a retailer be doing in the market is what I'm looking forward to learning in this session. And I hope कि यहाँ पे हम लोग उसका आंसर मिलेगा सर बस. So I'll give you from how the asset class generate returns, so you get some perspective. So if you look at a debt, whether it's a bank FD or a corporate FD or a of an NCD or debt mutual fund, if you look at the entire debt space, bank offer the lowest investment return because they know the customer have a comfort, and it's you find very interesting that same banks 3 month, 12 month CD always invariably caught higher than the 3 month, 12 month FD of a particular bank. But invariably, what we've seen in the debt space is that debt delivery return which is closer to inflation, and these inflations are government driven data, but they do not capture the real increase in the lifestyle expenses. But still, we invest large sum of money into debt. Second, if you look at how the return get generated into real estate, is by and large it is uh, economic expansion in a particular area, but real estate is too geographic specific. If you look at equities, then equity deliver return which are inflation plus nominal GDP growth, and perhaps corporate would generate 0.5% or 1% more than that. But there could be 5 to 7, even 10-year period where the GDP expand more than the corporate profitability, and the corporate profitability expand more than GDP. So a normal investor need to think that which asset category will protect their future purchasing power. The current purchasing power can be effectively protected against through debt instrument,
But if you look at future purchasing power, which is 5, 7, 10, 12, 15 years down the line, then the retail investor need to explore option beyond uh, debt, and for normal investor, equity market could be a fantastic option. And there are various ways in which one could participate in the equity market. One is that you have an index fund, you have a mutual fund, you have an NPS, you have insurance companies product. Through various product, investor could look at exploring and participating in the India growth story, or at least forget about India growth story, at least able to generate return which is at least 2 to 3% more than inflation number. So that is, in my opinion, the only space available for a normal investor to participate, even with a small amount, is equities. Right. And sir, how about the risk side of it? I think coming from a family of doctors, मेरे perspective में, my family has always believed in कि only in real estate and FDs. So they believe कि stock markets are very risky. Even mutual funds they consider relatively risky, and they believe कि land में पैसा डाला या gold में डाला या FDs में डाला, only then it's safe. So what perspective do you have I for risks around that? I think Vishnu is a brilliant question, and that is the question which most Indian investors have in their mind. And this is what happened, that when you look at risk in any investment product, तो ये जरूरी नहीं है कि वॉलेटिलिटी खाली रिस्क है, और जो इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कंट्रोल हो सकती है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर जो रिस्क है वो कभी एलिमिनेट नहीं होती। रियल एस्टेट कंपेयर टू इक्विटी लुक्स लेस वोलेटाइल बिकॉज उसमें लिक्विडिटी नहीं है। नाउ लेट मी कम टू एफडी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आप 1990 से 2022 के मैंने डेटा देखे हैं। वीट, तूर दाल और पेट्रोल, इनका इन्फ्लेशन 7.5 से 8.5% के बीच में रहा लास्ट 32 सालों का। तो अगर आपका 7.5 से 8.5% के आसपास आपका इन्फ्लेशन नंबर है, बेसिक एसेंशियल आइटम, डोंट गेट फूल्ड बाय द इन्फ्लेशन नंबर गवर्नमेंट गिव्स बिकॉज इट डजंट कैप्चर लाइफस्टाइल चेंज। तो कौन सा डेट प्रोडक्ट आपको 7.5, 8, 8.5% पिछले 30 साल 32 सालों में दिया है? मेरी समझ के बाहर है, कोई दिया नहीं है। तो डेट में एफडी के अंदर जो चैलेंज है, ऐसा हमको लगता है कि वो प्रिडिक्टेबल है, बट एक प्रिडिक्टेबिलिटी और ही है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर अगर रेट ऑफ ग्रोथ इज लेस देन चेंज इन माय लाइफस्टाइल, देन बेसिकली आई एम लूजिंग कैपिटल। तो जरूरी नहीं कि प्राइस वॉलेटिलिटी एक रिस्क हो। दूसरा, अगर हम रियल एस्टेट के अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क रियल एस्टेट में आता है इलिक्विडिटी का, कि जब आपको पैसा चाहिए शायद आप उस टाइम उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को बेच नहीं पाए। आपके पास 5 करोड़ का प्लॉट है और आपको 50 लाख रुपए चाहिए, आप वो प्लॉट को तोड़ नहीं सकते। तो लिक्विडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इफ यू लुक एट इन्वेस्टिंग। और उसके अलावा रियल एस्टेट में और भी अलग तरह के चैलेंजेस, जैसे फ्रॉड, कोर्ट केसेस, वेरियस काइंड ऑफ challenges are there. When I'm talking about equity, I'm basically talking about equity mutual fund and index fund. I'm not talking about individual stocks. इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटीज के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स के अंदर परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल आज तक दुनिया में कहीं भी, यूएस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस और इंडियन मार्केट, नहीं हुआ। हो सकता है 1 साल 2 साल कोई कोई पीरियड आता है, 5 5 10 10 साल तक आपका रिटर्न नहीं आया है, लेकिन लॉन्गर जितना आपका टाइम जाता है रिटर्न नहीं आया है, इसका मतलब रिटर्न आएगा। इंडिया में 1992 से अक्टूबर 2003 का जो 11 साल का पीरियड, 138 महीने का पीरियड है, वहां आपका पैसा नहीं बना। लेकिन अक्टूबर 2003 के बाद जो अगले 5 साल जो बाजार ने पैसा बना के दिया, दैट वाज कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। तो इक्विटी के अंदर एक ही रिस्क है वोलेटिलिटी का, वो रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आपने एक टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। जो मैंने अप्रैल 92 से अक्टूबर 2003 के आपको नंबर बताए, वो ऐसा नहीं कि हर आदमी ने खाली अक्टूबर 1992 में पैसा डाला, उसके बाद पैसा डाला नहीं कभी भी। तो अगर आप इक्विटी में आपको रिस्क रिड्यूस करनी है, एलिमिनेट करनी है, तो रेगुलर बेसिस पे आप इन्वेस्ट करें और लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपका इक्विटी से रिस्क चला जाता है। लेकिन रियल एस्टेट और एफडी का जो रिस्क है वो कभी नहीं जाता, लेकिन ऑप्टिकली वी आर नॉट ट्रेन टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। और यही हमारा बड़ा चैलेंज है कि वी, बड़ा पैसा हमारा रियल एस्टेट और एफडी के अंदर अटका रहता है,
और मेगा ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इज नॉट इन फेवर ऑफ रियल एस्टेट, मेगा ट्रेंड इज नॉट इन फेवर ऑफ इवन गोल्ड. Mega trend is actually an asset light model, or mega trend is actually owning equity. And if you look at any developed world, for instance, one of the biggest country, and in last 200 300 years, one of the most prosperous country in the world has been USA. And in the USA, equity ownership is very high. Right. Perfect. Sir, in terms of diversification in between these asset classes, what do you think would be an ideal asset class? And I also want a perspective from matlab ek different. So I believe it cannot be same for everyone. So it can be based on, let's say, उनका location कि वो tier 2 में based है, metro cities में based है, or it can be based on age wise also. कि आप अपने सो इट्स सेड कि आप यंग है तो यू शुड मे बी इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी, टेक मोर रिस्क, एंड इफ यू आर टुवर्ड्स रिटायरमेंट सो यू शुड बी इन्वेस्टिंग मोर इन डेट फंड्स, समथिंग लाइक दैट. तो एक, हाउ डू यू कम एट एन आइडियल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ एज अ रिटेलर? देखिए, आपका बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. और 60 साल का आदमी लैंड ले लेता, 60 साल का आदमी बड़ा प्रॉपर्टी खरीद लेता, तब उनको रिस्क नहीं लगता. इक्विटी में आते ही 60 साल के आदमी को सारी रिस्क दिखने लग जाती है. बट ओके, लेट्स टेक द वे इट इज. सो हाउ डज वन अलोकेट इन इक्विटीज? इक्विटी हैव अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. हमारा सबसे बड़ा एनिमी हमारी कैपिटल का है इन्फ्लेशन. तो इक्विटी हैव अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. बट इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा इक्विटी में डालना है. तो आई गिव सम आइडियाज हाउ वन कुड लुक एट डूइंग एलोकेशन इक्विटीज. पहला है कि 100 माइनस योर एज शुड बी इक्विटी एलोकेशन. एक स्टैंडर्ड लोग बोलते हैं, लेकिन इंडिया में पहले तो लोगों के पास इतना एक जगह पूरा वेल्थ है, क्या है कैसा, इतना आइडिया नहीं रहता है. सो आई कैन गिव सम पर्सपेक्टिव. 3 से 5 साल का, आने वाले 3 से 5 साल का, डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर बिजनेस और सैलरी और कैश फ्लो इज. अगले 3 से 5 साल का आपका जो भी खर्चा है, घर का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, ईएमआई है, बच्चों की शादी है, वेडिंग है, घर लेना है, अगले 3 से 5 साल की पैसा जो भी है, वो उस पैसे पे अपने को करेंट परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करना है. तो वो पैसा सारा का सारा डेट एंड डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में ही जाना चाहिए, और वहां अपने को रिटर्न चेस नहीं करना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी चाहिए कि डेट में रिटर्न चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आधा 1% एक्सेस रिटर्न के लिए यू कैन कंप्रोमाइज 100% ऑफ कैपिटल. तो जो 3 से 5 साल का खर्चा है वो हमेशा डेट में रहना चाहिए. उसके बाद का पैसा आपको इक्विटी में डालना है. लेकिन इक्विटी में जब भी एलोकेशन करें, आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इक्विटी में 5, 10, 15, 20, 30, 40, इवन 50% करेक्शन बाजार में हुआ है. तो इक्विटी में उतना ही पैसा डालें जिसके ऊपर आपको ये टेम्पररी वॉलेटिलिटी एक्सेप्टेबल हो. उतना ही पैसा आप इक्विटी में डालें. अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो बैलेंस, आप पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी कैटेगरी के अंदर आप अलोकेशन दे सकते हैं. राइट. सर, कंसिडरिंग जो एसईसीसी के बारे में जैसे बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला था कि आपको अपनी करंट परचेजिंग पावर को ही देखना है, आपको अपनी डाउन द लाइन आप परचेजिंग पावर कहाँ पहुंचाना चाहते हो वो भी देखना है. सो ऑफ कोर्स आई थिंक इंडियन माइंडसेट इज कि वो तो जॉब करके या बिजनेस करके जो आएगा उसी से ही बढ़ेगा. डू यू बिलीव कि इन्वेस्टिंग कैन एक्चुअली, इन्वेस्टिंग एंड यू नो एक प्रोफेशन की तरह से भी लोग कभी ट्रेडिंग लेते हैं, उसको ट्रेडिंग कह लीजिए, that can increase your purchasing power? बिल्कुल कर सकता है. और आप एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए कि आपके पैसे पे वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं है. एक्चुअली वॉलेटिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे बड़ा रिस्क है वो आपको ध्यान रखना दो. एक तो लॉन्जिविटी, कितना लंबे समय तक वो पैसा बना सकता है, और दूसरा है कि आप अपने पैसे के ऊपर फ्यूचर परचेजिंग पावर कैसे प्रोटेक्ट करें. और फ्यूचर परचेजिंग पावर के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन का. और इन्फ्लेशन हम खुद ही क्रिएट करते हैं. इन्फ्लेशन का मतलब क्या? महंगाई. महंगाई क्या है कि जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं. तो आप अपना लाइफ स्टाइल देखिए, सुबह उठते ही आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं. ऑन एवरेज एक टिपिकल इंडियन एक दिन में 160 लिस्टेड कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. आप सुबह उठे, आपने टूथब्रश किया, पेस्ट किया, यू कंज्यूम सेरामिक टाइल्स, स्टील, ग्लास, बिल्डिंग मटेरियल, आप मेडिसिन लिए, आप फ्रिज इस्तेमाल किए, ओवन इस्तेमाल किए, गाड़ी में ऑफिस गए, पेट्रोल खर्च किया.
और ये सारी कंपनी आपसे पैसा बना रही है। आपको सिंपल लॉजिक करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, फॉर इंस्टेंट अगर आप डेली बेसिस पे दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, और कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, XYZ फार्मास्यूटिकल कंपनी का आप दवाई खरीद रहे हैं, और आपका 1,000 रुपया हर महीने का सपोज करो मेडिसिन का बिल आ रहा है, आप खाली उसका 20% फार्मास्यूटिकल फंड में डाल दें। अगर आप 15-20 साल ये करते रहे तो आपका कॉर्पस इतना बन जाएगा कि आपका फ्यूचर मेडिसिन का नीड सारा उससे फुलफिल हो सकता है। एंड लेट्स टेक इट टू द लार्जर स्केल, सपोज आपका महीने का खर्चा 50, आपका महीने का इनकम 50,000 रुपया है, आप उसका 20% इक्विटीज में डाल देना 15-20 साल तक, तो आपका रिटायरमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, और इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रोच करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अपने को ये भी सोचना है कि पहले एक परिवार में 5-6 बच्चे होते थे, अभी फैमिली साइज इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आपको ये देखना है कि हाउ सक्सेसफुल यू आर इन इन्वेस्टर। वो आपको ऐसे जज करना है कि मेरी साल की इनकम 5 लाख रुपए है, मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है, और अपने को उस लेवल पे पहुंचना है कि फास्टर वी शुड रीच दैट लेवल की जो मेरी इनकम हो रही है बिजनेस से, प्रोफेशन से, सैलरी से, उतनी इनकम क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट से जनरेट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जितना फास्टर आप पहुंचेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। राइट। सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका बताया कि आपका जैसे मंथली बिल अगर फार्मा का इतना आ रहा है तो उसका कुछ परसेंटेज आप उस सेक्टर में डाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डाउट रहता है रिटेलर्स के माइंड में व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इज कि कब करें इन्वेस्ट। इज देयर, कैन यू रियली टाइम द मार्केट कि आप जब मार्केट गिरा देखे तब आप पैसे डालो और जब हाईज पे हो तो निकालो? कैन यू रियली टाइम इट, और एस आई पीज वर्क बेस्ट, और व्हाट इज द आइडियल वे अ रिटेलर शुड बी व्यूइंग द मार्केट? देखिए, थ्योरेटिकल तो ऐसा बोलते हैं कि बाय एंड होल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, लेकिन बाय एंड होल्ड में ईयर 2000 में मार्केट 50% गिरा और 6 साल लगा प्रॉफिट बनने में। तो फेब्रवरी मार्च 2000 का जो लेवल था उसी लेवल पे आने में करीब करीब 54 महीने लगे। जनवरी 2008 का लेवल था, वापस उसी लेवल को मार्केट में आने में फरवरी 2014 लगे, मतलब 6 साल का पीरियड लगा। और 92 का मैंने डेटा आपको बता दिए। तो थियोरेटिकली तो बाय एंड होल्ड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, लेकिन इतना होल्डिंग कैपेसिटी लोगों का नहीं होता। जब पैसा में नुकसान होता है तो फिर कॉन्फिडेंस भी लोगों का हिल जाता है। सो मार्केट टाइमिंग तो एक तो ये हो गया, दूसरा मार्केट टाइमिंग बहुत मुश्किल काम है, मुझे लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इन इन बिटवीन कुछ रास्ता निकाल सकते हो क्या? तो मैं आपको 2-3 आइडिया बताता हूँ, आप उस पर कैसे काम कर सकते हो। स्ट्रक्चरल तरीके से जाइए, व्यू बेस मत जाइए कि मुझे क्या लग रहा है बाजार। अगर आपको व्यू बेस जाना है तो पहले आपका जो भी व्यू है, आपका जो व्यू बन रहा है वो डायरी में लिखते जाइए, और उस व्यू को आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद देखें कि आपने जो लिखा वो हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि हर दिन आदमी का व्यू बनता रहता है और उसको लगता है कि उस दिन का व्यू सही है, लेकिन अगर आप अपना व्यू रिकॉर्ड करेंगे, डायरी में लिखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि राइट वे और रॉन्ग वे टू इन्वेस्ट। तो अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट में आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। एक होता है कि आप लो रिस्क इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें आप बैंक एफडी में पैसा पड़ा है, टैक्स फ्री बॉन्ड में पैसा पड़ा है, या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, उसका जो भी गेन आता है वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करते रहे, डालते रहे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप खाली इंटरेस्ट और गेन ही इक्विटी में डाल रहे हैं। तो उससे आप, मार्केट नीचे गिरा तो घबराते नहीं है और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाती है। देन यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट ओवर 3 to 5 year, एंड दिस जनरेट सिग्निफिकेंट गुड रिटर्न ओवर अ 20-30 year पीरियड। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप देखिए, बाजार का पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड डील, इन सारे मैट्रिक्स में इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं, तो आई विल नॉट एडवोकेट दैट। दूसरा तरीका हो गया कि आप जब भी पैसा डालें, जैसे आपको 1 लाख रुपए डालना है तो आप 5,000 रुपीज डालें स्टार्ट विथ। और अगर बाजार गिरा 5,000 के नीचे आपका वैल्यू हो गया, तो जितना नीचे वैल्यू हो गया उतना आप पैसा डालते रहें। और जो भी आपने प्रिंसिपल डाला उसके नीचे वैल्यू आया तो उसको, जैसे 5,000 रुपए आपने डाला और मार्केट 4,500, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 4,500 हो गया, तो 500 रुपए और डाल दें।
तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 5,500 हो गया। एक महीने बाद 5,500 का वापस 5,000 हो गया, तो 500 रुपीज और डालते हैं। ऐसा अगर आप करते रहे तो लोअर मार्केट लेवल पे आप ज्यादा और इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर रिटर्न आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तीसरा तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप अ, जब भी इन्वेस्ट करें एक टारगेट अपने मन में रखें कि मेरे को 12% रिटर्न चाहिए, और सपोज आपको 1 लाख रुपए डालना है तो 60 to 70,000 इक्विटी में डालें, और बोले कि अब ये 60 to 70,000 हर महीने 1% ग्रो करना चाहिए। अगर मार्केट ज्यादा ग्रो किया तो आप पैसा निकाल ले, एक साल तक कुछ नहीं करे, पैसा निकाल ले, और मार्केट गिरा तो आप पैसा डालते रहे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि राइजिंग मार्केट में सपोज आपने 1 लाख रुपए डाल दिया इक्विटी में, एक साल बाद आपका रिटर्न टारगेट है 12%, तो 1,12,000 होना चाहिए, लेकिन एक साल बाद 1,18,000 हो गया, 1,30,000 हो गया। तो जो भी एक्सेस रिटर्न आप डेट में ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो पोर्टफोलियो हर महीने 1% बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट ज्यादा बढ़ा तो जो एक्सेस रिटर्न आप निकाल लें, और मार्केट गिरा तो जो डेट में पैसा हो इक्विटी में डाल दें। ये स्ट्रक्चर आप अपने डायरेक्ट स्टॉक के पोर्टफोलियो पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आपके पास 20 स्टॉक है, 10 स्टॉक है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डिवाइड कर दें, और अगर लार्ज कैप 2% बढ़ा और आपका लार्ज कैप का स्टॉक कोई 4% बढ़ा, तो जो भी एक्सेस रिटर्न है वो आप निकाल लें। ये करने से इस प्रोसेस में क्या होगा कि आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और आपको बड़ा झटका भी नहीं लगेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये मार्केट टाइमिंग नहीं है, एक अपनी स्ट्रेटेजी से आप इसमें काम कर सकते हैं। राइट। परफेक्ट सर। सर नेक्स्ट, जैसा कि आपने मतलब ये आपने बोला है कि मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसको प्रेडिक्ट कर पाना। अनदर मुश्किल जो लोगों को आती है इवन इफ दे आर कन्विंस कि ठीक है लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज, पहले तो इक्विटी टू बिगिन विद थोड़ा सा रिस्की होता है एंड उसमें बहुत सारे फंडामेंटल समझना, तो इट्स अ कंप्लीट साइंस, तो आई वोंट गो स्टॉक स्पेसिफिक कैसे देखना। बट इवन इफ वी गो वाया द म्यूचुअल फंड रूट या कोई इजियर पीएमएस रूट, तो व्हाट आर सम ऑफ द की फैक्टर्स दैट people should look at before deciding कि अच्छा ये मेरे लिए ठीक रहेगा? देखिए, मैं बहुत इस बात को मानता हूं कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना चाहिए। सपोज लेकिन फिर भी आप नहीं हायर करना चाहते हैं या कि कोई भी कारण आपको अच्छा एडवाइजर नहीं मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन आप इंडेक्स फंड में चले जाइए। तो उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। और अगर इंडेक्स फंड से आगे आपको जाना है तो इंडिया में भी बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप लार्ज फंड हाउस को देख लीजिए जिनका 20-20, 25-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। तो आप HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI, कोटक, ये बहुत, टाटा म्यूचुअल फंड, ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें आप कोई भी, मैं तो अपने जो क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी फंड हाउस को 15 से 20% से ऊपर एलोकेशन मत दीजिए। और एक फंड का उसका आप दूसरा प्रोडक्ट रिपीट मत करिए। जैसे आपने एक एक फंड हाउस का लार्ज कैप लिया तो उस फंड हाउस का फिर मल्टी और फ्लैक्सी फंड मत लीजिए। किसी का मिड कैप लिया तो फिर उसका स्मॉल कैप मत लीजिए, क्योंकि एक फंड हाउस के पास जनरली 20-25 यूनिक आइडिया होते हैं, वो सारे फंड में रेप्लिकेट होते हैं, वहीं से बड़ा अल्फा लोग का जनरेट होता है। तो और इसमें ये दिमाग मत लगाइए कि मेरे को बेस्ट फंड मिलना है। अभी मैंने एक वीडियो रिलीज किया, मैंने दिखाया कि पिछले 20-25 सालों में मैंने हर कैटेगरी के वर्स्ट फंड लिए, वर्स्ट 5 फंड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हर कैटेगरी के वर्स्ट 5 फंड लिए। अगर आपने 1 लाख रुपए डाला, हर कैटेगरी के खाली वर्स्ट 5 फंड ही आपने लिए, तो 25 साल में 1 लाख का 54 लाख रुपया हो गया। तो डोंट मेक द बेटर द एनिमी ऑफ द बेस्ट। वो बेस्ट आपकी किस्मत में तो आ जाएगा, इतना दिमाग मत लगाइए। लेकिन अगर आप 7-8 अच्छे फंड में पैसा डाल देंगे, ऑन एन एवरेज यू विल डू वेरी वेल। तो इतना स्ट्रेस लेने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। राइट। एंड सर टू बिगिन इन्वेस्टिंग व्हाट इज मतलब कितना आपको लगता है कि इज अ गुड आइडिया कि अगर आप इतना अर्न कर रहे हो तो उसके ऊपर ही आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, या कुछ इज देयर अ क्राइटेरिया लाइक दैट, या फिर जो कहा जाता है कि नहीं आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए डालना शुरू करो? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सबसे ज्यादा गरीब है ना, उसको सबसे ज्यादा इक्विटी चाहिए। पैसे वाला तो वैसे ही बहुत, उसका बिजनेस ही इक्विटी है। जो सबसे लोअर तबके का आदमी है उसको समझ के, ओके, पैसा डालना चाहिए। जैसे हमारी वे इन आई स्टे इन मुंबई एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्स आई स्टे। तो मैंने हमारे सब सिक्योरिटी गार्ड, सब लोगों को मैंने SIP करवाई है, बिकॉज दे नीड
द बिगेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो हर आदमी को करना चाहिए। 500 रुपये, 1000 रुपये आप चालू करके देखो। 1000 रुपये कम से कम आप इन्वेस्ट करना चालू करो। आई थिंक दिस अ ग्रेट आइडिया। तो हर आदमी को, और मेरे हिसाब से अगर आप अपनी इनकम का 50% तक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, तो आपको जिंदगी में कोई दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इटसेल्फ विल क्रिएट सो मच वेल्थ फॉर यू। बट सपोज आप 50% नहीं डाल सकते, तो मिनिमम अपना इन्वेस्ट इनकम का 20% आपको मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। अगर आप वो कर लिए, इट विल सिक्योर रिटायरमेंट। बट सपोज आप 30, 40, 50% तक पहुंच जाते हो, it will do magic for you, because इंडिया में, I'll give some numbers to you so you understand very clearly। इंडिया में सबसे पुराना फंड है मास्टर शेयर, यूटीआई मास्टर शेयर। उसका 36 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 16% CAGR। 25, 26, 27, 28 साल के बहुत फंड है, 18% CAGR है। मतलब ऑन एवरेज अगर मैं 30 साल के जो सारे म्यूचुअल फंड लूं, तो 30 साल के पीरियड में ऑन एवरेज 86 टाइम उन्होंने पैसा बनाया है। ये तो हिस्ट्री है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ये मेरे को मानना है, क्योंकि वो एक अलग इकोनॉमी थी। बट आने वाले पीरियड में भी आपको 10 से 12% कंपाउंडिंग का पैसा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप मिनिमम 20%, और हर आदमी को इक्विटी लेना चाहिए। और जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको मेरे हिसाब से समझ के, सोच समझ के इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना ही चाहिए। वो ही उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर उन्हें इनकम ग्रो नहीं हो रही है, कुछ भी होने, तो सपोज आपका बच्चा आईटी इंजीनियर नहीं बन पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आईटी सेक्टर फंड ले लो। आई एम नॉट सेइंग यू शुड गो एंड बाय, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। आप फार्मिस्ट नहीं बन पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, फार्मास्यूटिकल फंड में पैसा डाल दो। यू विल नॉट रिग्रेट। राइट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सर। सर, एक मैंने आपका ट्वीट देखा था कुछ टाइम पहले, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था, विच इज कि एक एवरेज, आई थिंक, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द स्टैटिस्टिक, आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल अस बेटर, कि एक एवरेज इन्वेस्टर 2 साल के लिए एसआईपी करता है एंड देन उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उसमें क्या, मतलब क्या लगता है आपको, व्हाट इज दिस बिहेवियर अबाउट? एक्चुअली वो मैंने ट्वीट किया था कि जो एसआईपी इन्वेस्टर है, इंडस्ट्री लेवल के डेटा है, और उसमें काफी ऐसा है कि बाइफरकेशन नहीं, कितने डायरेक्ट है। जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म से लोग काफी पैसा डालते हैं, लेकिन वो हाईएस्ट ट्रेंडिंग फंड में डालते हैं, तो उसमें इनवेरिएबली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब लोगों का होता है। तो इन्वेस्टर को पेशेंस नहीं है। जैसे मैं आपको सिंपल चीज बोलूं, सबको सब चीज की समझ है। forget about wealth, let's look at health, which is very simple thing to do in life। सबको मालूम है क्या करना है जिंदगी में। भाई डाइट कंट्रोल करना है, उल्टा सीधा नहीं खाना है, नॉर्मल वॉक भी कियो आप 45 मिनट 1 आवर की, इट इज इनफ। कितने लोग इस डिसिप्लिन में रह पाते हैं? और नहीं रह पाते, इसलिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इंडिया has become डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो किसी चीज का जानना अलग बात है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अलग बात है। तो मैं आपको इक्विटी में बोलूंगा कि 25 साल में 50 टाइम वर्स्ट फंड में पैसा बन गया। यू गेट टेम्पटेड कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन वो जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन के साथ आती है, और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता लोगों को। तो जो मुंह को अच्छा लगे, वो अच्छा स्वाद वाला चीज है, जो रिटर्न हाई, पिछले 1, 2, 3 साल में अच्छा रिटर्न दिखा। तो जैसे अपना ईटिंग हैबिट है ना, कि जैसे आप खाना खाने गए, तो खाने का एसेंशियल फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू बॉडी। बट आप किससे पूछो कि खाना कैसा था, नोबडी विल से कि न्यूट्रिशियस खाना था, एनर्जेटिक खाना खाना। लोग बोले खाना टेस्टी था। और टेस्टी क्यों होता है? कि जीभ को खाना अच्छा लगा। लेकिन जीभ में तो खाना 1 मिनट के लिए रहता है, बाकी इंटेस्टाइन लीवर में 5 घंटे 7 घंटे लगते हैं पचाने में। तो जीभ को अच्छा लगा, वो अच्छा खाना हो गया। तो जो रिटर्न इमीडिएट अच्छा दिखा, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जो बड़ा पैसा बनाता, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस के थ्रू बनाता। आपने रियल एस्टेट में बड़ा पैसा बनाया, आपने मार्केट टाइमिंग के हिसाब से काम नहीं किया, आपने 20, 30 साल का होल्डिंग पीरियड रखा, तो आपका बहुत अच्छा पैसा बन गया। इक्विटी म्यूचुअल फंड में किसी का बड़ा पैसा बना, जो मेरे क्लाइंट है मेरे साथ, उनका बहुत अच्छा पैसा बना, बट दे हैव गॉन थ्रू 20, 30, 15, 20 इयर्स पीरियड, तो बड़ा पैसा बना। तो पेशेंस
बोलना समझना अलग बात है, पेशेंस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना बहुत ही अलग चीज है, और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हेल्दी एंड वेल्दी। राइट, राइट, एब्सोल्युटली सर। सर, एक चीज और, आई एम गोइंग बैक अ लिटिल बिट, जो मैंने पूछा था कि हम लोगों को जो अलग अलग टाइप के फंड्स मिलते हैं, सब मिलते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन मेरा रह गया कि एक तो हो गया कि ठीक है, अलग अलग कंपनीज के बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं, बट उसमें भी जनरली लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे होते हैं। सो हाउ डज वन गो अबाउट डिसाइडिंग कि उनको कौन सा फंड बेटर रहेगा, और मतलब कि उन्हें लार्ज कैप में करना है, दे शुड गो फॉर अ मिक्स डाइवर्सिफाइड अप्रोच, या स्मॉल कैप में करना है, वो रिस्क एपेटाइट कैसे समझ सकते हैं खुद की? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ बिहेवियर कि मेरे को सुनने में तो लगता है ठीक है कि ठीक है 10% डाउन होगा तो चलेगा, बट जब वो रेड दिखाई देता है तो बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगता है लोगों को। एक्चुअली विष्णु जी आपने एकदम सही बात की है। डेटा कैन बी बैक टेस्टेड, इमोशन बैक टेस्ट नहीं हो सकता। जो आपका इमोशनल रिएक्शन है वो कभी बैक टेस्ट नहीं, वो रियल होता है। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूं, पहले तो आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में पैसा डालें, क्योंकि आप पैसा भी डालेंगे तो आप 50% लार्ज कैप में डालेंगे, 25 मिड कैप, 25 लार्ज कैप स्मॉल कैप में डालेंगे, वो फ्लेक्सी कैप में आपको अप्रोक्सीमेटली उतना एलोकेशन मिल जाएगा। तो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप चूज करें। दूसरा, कोई भी कैटेगरी के फंड में आप जाओ तो आप देखो पिछले 10-15 साल के रिटर्न क्या है। अगर 10-15 साल का जीडीपी एक्सपांशन 13-14% और फंड 20% रिटर्न दे रहा है कैटेगरी एवरेज, तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो जैसे आज की तारीख में हम लें तो आज की तारीख में इज वेरी क्रेजी, रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा पैसा स्मॉल कैप में आ रहा है, और स्मॉल कैप में पिछले 10 साल का रिटर्न है 20% प्लस, और पिछले 10 साल का निफ्टी का रिटर्न है 12%। तो स्मॉल कैप में पिछले 10 साल में 5 से 6%, 6 गुना पैसा बना है, और निफ्टी में 2 से ढाई गुना पैसा बना है। तो इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है, जहां ज्यादा पैसा बना वहीं पैसा डालता है। वही जैसे गुलाब जामुन टेस्टी लगा तो ज्यादा खा लिया, वही लॉजिक है। तो जहां रिटर्न जीडीपी से बड़ा दिख रहा है, ज्यादा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिख रहा है, तो उस मार्केट कैप को जनरली अवॉइड करना चाहिए। तो आज की तारीख में स्मॉल कैप में नया पैसा नहीं डालना चाहिए। आज की तारीख में अगर आपको अभी तो इस मार्केट ऐसा है कि आपको वन टाइम कहीं भी पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको 12 to 24 मंथ की एसटीपी करनी चाहिए, और वन टाइम डालना तो बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड जैसे कैटेगरी में पैसा डालना चाहिए। तो आपको जब भी कोई कैटेगरी का फंड चूज करना है तो 1 साल 2 साल का रिटर्न नहीं देखें, 5-10 साल का रिटर्न देखें। अगर 10 साल का रिटर्न जीडीपी जैसे 12 से 13% बढ़ी है, उसके आसपास नंबर आ रहा है, तो बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन जीडीपी 12 से 13% बढ़ी है और अपना रिटर्न आ रहा है 18 से 20%, तो डेफिनेटली फ्यूचर में वहां पैसा नहीं बनेगा बड़ा। राइट, परफेक्ट। सर, नेक्स्ट मेरे को ये जानना है कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस टॉपिक को टच अपॉन किया। आपने जैसे बताया कि अगर आपने जैसे टारगेट समझ लिया कि 1% पर मंथ करना है, तो 12% से ऊपर आपको दिखा कि 80% बुक योर प्रॉफिट्स। आई वांटेड टू नो, अंडरस्टैंड कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से व्हेन वुड अ पर्सन, मतलब कब इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट विदड्रॉइंग योर फंड? देखिए, उसमें कब पैसा निकालना है तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब जरूरत हो आप पैसा निकालो। और अगर आपको रेगुलर इनकम का जरूरत है तो आप एसडब्ल्यू पे करो म्यूचुअल फंड के अंदर। और दो तीन तरीके हैं पैसे निकालने का। एक तो ये है कि जब आपको नीड हो तो पैसे जरूर निकालो, क्योंकि आपने इन्वेस्ट इसके लिए किया है कि आपके खर्चे आ रहे हैं। जैसे आज मार्केट देखो तो आपको पैसा निकालना है, तो गाड़ी लेनी है, घर लेना है, या बच्चों की शादी के लिए साइड में रखना, तो ये सही समय करने का। लेकिन ये सारा बर्डन मेरे को समझ में नहीं आता, इक्विटी पे क्यों आता है। आपके पास एफडी भी है, गोल्ड भी है, और रियल एस्टेट भी है। गोल्ड तो इसलिए लिया था कि मुसीबत के टाइम काम आने वाला है ना प्रोडक्ट, उसको हम टेस्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है कि अगर आपका असेट एलोकेशन ब्रेक हो रहा, आपने 50% एलोकेशन डिसाइड किया इक्विटी में और अभी ज्यादा आ रहा है एलोकेशन, तो आई थिंक आपको प्रॉफिट बुक करना है, तब आप पैसा निकालना चाहिए।
आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो डेफिनेटली आपको बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जैसे फंड में डालना चाहिए, और जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप तो एसडब्ल्यू कर लें या मंथ ऑन मंथ पैसा निकालते रहें, वो आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है म्यूचुअल फंड में कंपेयर टू बैंक एफडी और इंश्योरेंस, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। राइट, परफेक्ट। सर, एक और क्वेश्चन मुझे ये जानना था कि फॉर आवर ऑडियंस की जो बिगिनर्स हैं विद हु वांट टू गेट स्टार्टेड, इज देयर एनी रिकमेंडेड रीडिंग मटेरियल एज वेल, और डज रीडिंग हेल्प? तो इफ सो व्हाट इज दैट, एंड कितना क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, और पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ने से पहले इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप पढ़ोगे भी नहीं। जैसे आज आपने एसआईपी में एसआईपी चालू की, तो आप एसआईपी के ऊपर कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आएगा या कहीं भी दिखेगा, आप पढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन आपने एसआईपी की नहीं, खाली पढ़ रहे हो, तो फिर इतना आप पढ़ोगे भी नहीं ढंग से। तो डूइंग इज बेटर देन, तो आप छोटा सा एसआईपी, 1,000 रुपए का एसआईपी लार्ज कैप में मल्टी कैप में चालू करिए, एंड देन रीड। आप फंड की वेबसाइट पे जाइए, इतना जबरदस्त मटेरियल अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड का प्रेजेंटेशन आप देखिए, आपका जो भी जिसके थ्रू भी काम कर रहे हैं आप प्रेजेंटेशन देखिए, म्यूचुअल फंड मंथली कमेंट्री देता है, इतने उसके अंदर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट होते हैं। तो इवन इफ यू आर नॉट अ ग्रेट रीडर, बट इफ यू आर अ गुड लिसनर, इतनी वेबिनार होती है, इतना मटेरियल अवेलेबल होता है, पॉडकास्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं, उसके द्वारा आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। रीडिंग, अगर आपको खुद इन्वेस्टर बनना है तो डेफिनेटली रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका खुद का इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट, ऑसम, ऑसम। तो सर, ये तो हम लोगों का एक ब्रॉडली इक्विटी के अराउंड हम लोगों का एक की हो गया डिस्कशन। थोड़ा सा मुझे सर ये भी समझना है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट है अगेंस्ट इन जनरल इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस एंड स्टॉक मार्केट का, वो वेयर डू यू थिंक कि फ्रॉम ए एजुकेशनल पॉलिसी पर्सपेक्टिव कहाँ पर एक जरूरत है थोड़ा सा इंटरवेंशन की, कि आप कोर्सेज में आए और थोड़ा इसको प्रमोट करें? सो इज इट, मतलब न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स, इज इट स्कूल करिकुलम, वेयर आर वी मिसिंग द बस? नो, वी आर नॉट मिसिंग द बस, एक्चुअली ये प्रोसेस है। देखिए क्या है कि यूएस में बहुत फास्ट हो गया, इसलिए हमको लगता है कि इंडिया में बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यूएस एज ए सिविलाइजेशन इज 300 ईयर ओल्ड, वेस्टर्न यूरोप इज लिटिल लॉन्गर सिविलाइजेशन, लेकिन वहां पे बिफोर क्रिश्चियनिटी वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन, पोस्ट क्रिश्चियनिटी इज डिफरेंट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो इंडिया में गोल्ड वाज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और वो इतना अच्छा ऑप्शन था कि इट इज बिकम पार्ट ऑफ अवर कल्चर, रिलीजन, एवरीथिंग। बट दैट इज नॉट द केस इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज उनका वो लॉन्ग स्टैंडिंग सिविलाइजेशन नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें कि जैसे एसबीआई है, एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो 180-190 साल पुरानी संस्था है। रियल एस्टेट इज एज ओल्ड एज 500, 200, 150 years old. Gold is 3,000 year old investment option. म्यूचुअल फंड इक्विटी अभी इंडिया में पिछले 20-25 सालों में ही आया, 30 सालों में आया। जैसे इंश्योरेंस है, प्रोडक्ट ले, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है सारे के सारे, जैसे इंश्योरेंस है वो स्कॉटलैंड में डेवलप हुआ है, स्कॉटिश विडो फंड पहले बना। तो वहां पे फाइनेंशियल एसेट वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में 1500-1600 सेंचुरी से चालू हुआ, तो उनका एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। इंडिया में, यूएस में जो सेंचुरी का, वेस्टर्न यूरोप में सेंचुरी का हिस्ट्री है, 400, 4 सेंचुरी, 5 सेंचुरी, 6 सेंचुरी का हिस्ट्री है। इंडिया में भी वो 20-30 साल का हिस्ट्री है। तो और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई कन्वीनियंट प्रोडक्ट है कि लैंडलाइन से मोबाइल इमीडिएट लोग स्विच हो जाएंगे। ये बिहेवियरल पार्ट है, इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अ, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, जैसे एनपीएस चालू किया उन्होंने, ईपीएफओ चालू किया, लेकिन वहां पॉलिटिक्स आ गई तो वो बोला एनपीएस बंद करो, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अ, आप जैसा, जिस तरह से आप जो आप एफर्ट कर रहे हो, मुझे लगता है वो भी ब्रिलियंट एफर्ट है। तो उसका भी एक
हिस्ट्री में पता नहीं हम कितना, हाउ मच नीडल विल मूव टू मूव, बट एटलीस्ट हमको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने एक ट्विटर पे स्पेस करके लोगों को समझाने की कोशिश की। तो मैं तो 30 साल से म्यूचुअल फंड इक्विटी ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, और वह हम तब बात करते थे जब हमको 5 लाख रुपए का चेक मिल जाता था, हम बहुत एक्साइट हो जाते थे। तो वहां से हम बहुत लॉन्ग जर्नी हम ट्रेवल किए हैं, और ये जर्नी चलती रहेगी, एक दिन में नहीं होने वाला सर ये काम। बिल्कुल सर। आई थिंक सर मैंने कहीं तो एक आर्टिकल कुछ पढ़ा था कि इट्स आल्सो प्रॉब्ली टू डू विद इंडिया में जो इतना हाई इन्फ्लेशन रेट्स हैं, तो उसकी वजह से भी पीपल आर गेटिंग मोर फोकस कि अभी करंट कंजम्पशन कर लो, बिकॉज नो मैटर वेयर यू इन्वेस्ट वो बीट नहीं कर पाता था इन्फ्लेशन को, जो स्टैंडर्ड मॉडल्स में भी अवेलेबल उस टाइम होते थे। एंड सेकेंड वाज कि प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े जा रहे, तो इमीडिएट कंजम्पशन सूटेड बेटर इन दैट पीरियड। एंड मे बी शायद जो हमारा लैंड के प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, जो आपने भी बोला। सो दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। हाँ डेफिनेटली, हिस्ट्री जो आप हिस्ट्री में आप देखते हो, वो आप दिखते हो तो उससे आपका दिमाग शेप अप होता है। फॉर इंस्टेंट आप गोल्ड का एक इलस्ट्रेशन देखो, तो 1970 में और 1980 के पीरियड में, 10 साल के पीरियड में गोल्ड प्राइजेस इंडिया में 20 से 22 गुना बढ़े हैं। तो गोल्ड का जो भी आप इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस देखते हो पिछले 100 years का, वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न हैपन फ्रॉम 1970 टू 1980। और जो आप आज हर फैमिली के अंदर जो टॉप डिसीजन मेकर है, ही वाज बोर्न 5-10 year बिफोर दैट और अराउंड दैट पीरियड। तो सोना आसमान छुएगा अपनी साइकी में बसा, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव सीन। और बहुत इंटरेस्टिंग है, 70s 80s की मूवीज, हिंदी मूवीज बनती थी, उसमें विलेन एक्चुअल गोल्ड स्मगलर ही होता था, बिकॉज वो इसका दाम बढ़ता था भयंकर तरीके से। तो ये हिस्ट्री अपने दिमाग में जरूर खेल खेलती है, इसका आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेइंग। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में इक्विटी ओनरशिप की जागरूकता बढ़ रही है, एंड दिस विल इंक्रीज फर्दर। जैसे ईपीएफओ का पैसा है, अभी ईपीएफओ और एनपीएस का पैसा करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए हर महीने बाजार में आ रहा है। इंश्योरेंस का 4,000 करोड़ रुपए हर महीने बाजार में आ रहा है। म्यूचुअल फंड का 14-15 हजार करोड़ रुपए हर महीने बाजार में आ रहा है। ये किसका आ रहा है पैसा? आम इंडियन इन्वेस्टर का आ रहा है, और बढ़ने वाला है। राइट, राइट, एब्सोल्युटली सर। सर इट्स ऑलमोस्ट बीन 48 मिनट्स, हमारी ऑडियंस इज कंटिन्यूसली लिसनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, बट ऑफ कोर्स ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। इवन एस आई पीज एंड एस डब्ल्यू पी शुरू होते हैं। सो बिफोर वी क्लोज, आई वुड वांट टू आस्क एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू लीव फॉर आवर लिसनर्स, जो कि उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि what is easy to implement and what is intellectually most stimulating. The biggest wealth creation happen in multi-baggers, पर कोई भी मल्टी-बैगर बिना 50-60-70-80% ड्रॉ डाउन के नहीं हुआ है। तो वो दिखता बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ability to carry that is very difficult. SIP is non-glamorous product, it become part of your habit. अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, आपने SIP की है, आपका XRR 15-16% है, तो आप उस चीज पे ध्यान रखें। अगर आप इंडिया में हैं और इक्विटी में नहीं है, तो इंडिया में खाली आपका शरीर, आपकी आत्मा नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, और अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए धीरे धीरे इक्विटी को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना चालू करें। और 5,000 साल पहले धृतराष्ट्र को 100 लड़के चाहिए थे। अपने समाज में 30-40 साल पहले किसी महिला के अगर बॉय चाइल्ड नहीं हो तो उसका फैमिली में भी रेस्पेक्ट नहीं होता था। लेकिन पिछले 20-30 सालों में, आज की तारीख में क्या हो गया? इट इज परफेक्टली लेजिटिमेट टू हैव अ गर्ल चाइल्ड एंड ओनली गर्ल चाइल्ड। तो जो 5,000 साल की जो सोच थी, उसको हमने 20-30 साल में बदल दिया पूरा का पूरा। वी चेंज फॉर बेटर। तो अगर आप उस ए थिंग विच इज एज इमोशनल एज किड, वहां अपने विचार बदल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप कोशिश करें, तो आपके विचार बदलेंगे और आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। Absolutely beautifully put, sir.
Thank you so much, Vijay sir, for making time for us and coming to our show. One session was definitely not enough, sir. और भी बहुत बहुत सारे सवाल हैं. I'm sure हमारी audience के पास भी, मेरे पास तो है. Please allow us to host you again sometime and learn more from you, sir. Again. Thank you, Vishnuji. I'm really very kind of you, very thankful to Trinker and to you to reaching out to me. और आपके सारे ऑडियंस का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप रात को 9 बजे आए, ज्वाइन किया. आई एम रियली ऑनर्ड. और जो आप एफर्ट कर रहे हैं, I must compliment you for that. Thank you so much, sir. It really, I really feel glad कि आपको अच्छे लगे हमारे efforts, and I'm really thankful to our audience. Beautiful audience, 170, 180 people consistently. और जो graph था हमारी audience का वो भी बढ़ता ही रहा. Very engaging conversation. All kudos to your expertise, sir. Thank you so much for coming again, sir. And I really. आप ये अच्छा काम करते रहे विशु जी, और आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे. आप इसी मार्ग पे चलते रहें. You will do great service to the common Indian investor. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you so much, everyone. Have a green, profitable journey ahead in the markets. Bye bye.